ਏਜੰਟ ने धोखा ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾਏ गए जी। मुझे झूठ बोल कर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल। एजेंट से तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूँगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। तो सुना आपने, एजेंट ने बोला फ्लाइट के जरिए अमेरिका भेजूंगा, फिर डंकी लगवा दी। इसके लिए किसी ने 50 लाख रुपए खर्च किए, किसी ने 70 लाख, किसी के परिवार की ज़मीन बिक गई, किसी की दुकान, कोई मोटे कर्जे में डूब गया और जिसने पैसे नहीं दिए उसे करंट लगाया गया। एजेंट ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि इनके परिवार वालों को तक टॉर्चर किया। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूएस से वापस लौटे सभी भारतीयों की कहानी लगभग एक जैसी है। अमेरिका में बसने का, अच्छी जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन एजेंट ने इन्हें पैसों के लिए डंकी लगवा दी। 1 महीने का बोलकर जंगलों, समुद्रों, रेतों के बीच 7-7 महीने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जो इसको झेल गया वो अमेरिका पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर भी जिंदगी बद से बदतर हो गई, जिसे अब ये लोग याद भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो सफ़र इतना डरावना था। रॉबिन हांडा ने बताया कि उनको पता था कि वो डंकी के रास्ते से अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन एजेंट ने कहा था कि इस सफ़र में सिर्फ 1 महीना लगेगा, लेकिन उन्हें पहुंचने में 7 महीने लग गए और एजेंट उनसे लगातार पैसे लेता रहा। जी हाँ, ज़रा सुनिए। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਿਓਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਰਾਹ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ? ਰਾਹ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਮਾਫੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ। ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। तो अमेरिका ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ 2-3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। कितने पैसे लगाए आपके माँ बाप ने आपको भेजने के लिए? ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਤਲਬ 42-43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ। तो ज़मीन बेची थी? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। कितनी ज़मीन बेच के भेजा आपको? ਜੀ 1-1.5 ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਡੋਂਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਏ ਫਲਾਈਟ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ कहने दे शब्द नहीं है भी एवं दे हालात उत्थे। इतना ही नहीं, रॉबिन के पिता ने बताया कि जिस एजेंट ने उनके बेटे को गुमराह करके अमेरिका में भेजा था, वो पीछे से पैसों के लिए उनको भी धमकियां देता था कि अगर तूने मुझे आगे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे बेटे को टॉर्चर करवा दूंगा, और उसने उनके बेटे को करंट भी लगवाया। ज़रा सुनिए।
45 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਕਟਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੋਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਹੈ ਹਾਂ ਉਰਫ ਗੋਨੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ वो ਕਰਾਂਗਾ, ਕਟਵਾਵਾਂਗਾ। मैंने बिजलियाँ तक लवाइयाँ ने जी बच्चे। रॉबिन के साथ ही खुशप्रीत सिंह भी डंकी करके गए थे। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, ज़रा सुनिए। बम्बे गया था जी मैं। अच्छा बम्बे से गवाना। अच्छा बम्बई से गवाना। अच्छा फिर आगे गवाने से फिर टैक्सी रूट हो गया था नीचे से डोंकी लग गई थी मेरी। आगे कोई फ्लैट फ्लूट नहीं हुई, बोल रहे थे फ्लैट टू फ्लैट भेजेंगे, कोई चलना नहीं पड़ेगा, तो बॉर्डर पे थोड़ा ही चलना पड़ेगा। 2-3 घंटे बॉर्डर पे चला, फिर जाके बॉर्डर बिचा। तो 45 लाख रुपए लिए थे, परिवार वालों से बताया नहीं कि आपको डोंकी से भेजा जा रहा है या आपको सीधा भेजा जाएगा अमेरिका? मैं बोल रहा था घर वालों को पेमेंट देने को पहले रेट कर लेना, नीचे से जा रहा हूँ मैं, ये अरे कर लेंगे, तुम जाओ पहले, फिर बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। तो जब आप वहाँ फंस गए, परिवार से बातचीत होती थी कि फ़ोन पे किसी से? ना जी, 10 पकड़ दिन लिया है मुझे ये पहले 10 दिन तो हो ही नहीं। फिर आगे वहाँ चला गया, कैंप में चला गया, वहाँ भी नहीं बात हुई 10-12 दिन। फिर सीधा इंडिया आया, इंडिया पता लगा हाँ भाई आ रहा है वापस। अब क्या आगे क्या कुछ करने की सोचा हुआ? अब देखते हैं, पैसे जोड़ने की सोच रहे हैं, फिर देखेंगे कोई बिजनेस शुरू करेंगे। फिर कभी दोबारा जाने की सोचेंगे? ना जी, दोबारा किसी को नहीं आखूँगा जी, तो दोबारा जाओ डोंकी में, अपना घरे रहो, अपना माँ प्यो के पास रहो। इस्माइलाबाद के रॉबिन हांडा ने बताया कि उनको करंट वगैरह भी दिया गया था, तो ऐसा कुछ टॉर्चर आपको भी हाँ किया? जी, हाँ जी, सारा मेरा साथ ही था। हाँ जी। क्या टॉर्चर क्या गया था? टॉर्चर बस पेमेंट नहीं गई थी उस पास जी, बस और कुछ नहीं जी, बस टॉर्चर करा गया थोड़ा। टॉर्चर क्या बताएं? भाई पहले वहाँ पर चेकिंग हुई, सारे कपड़े हुई, कोई बंदूक बंदाक तो नहीं ली फिर रही है, तो फिर उसके बाद अपना पैसे मांगने लग रहे, तो जो ज़्यादा ही बदमाशी दिखाता था उसको लगा देते थे करंट। ठिकाने कर देते थे? हाँ जी। ठिकाने क्या करते थे? मार देते थे, गोली मारते? ना गोली नहीं जी, करंट लगाते थे। अच्छा। बिजली वाला करंट होता था उस पास, वो लगाते थे जी। अच्छा। खुशप्रीत के पिता ने भी यही बताया कि एजेंट उनको धमकी देता था, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे बेटे को मरवा दूंगा या टॉर्चर करवाऊंगा। जिसके बाद मैंने अलग अलग जगह से कर्जा लेकर के उसको जैसे तैसे पैसे दिए थे। ज़रा सुनिए। ये क्या वापस आ रहा है, इसका पैसा डूब गया पानी में। कितने पैसे लाए थी? 45 लाख रुपये लग गया। तो कैसे इकट्ठा किए 45 लाख रुपये? बड़ी रकम हो गई है। कुछ लिमिट बनवाई है, लोन लिया है, कुछ रिश्तेदारों से सारे इकट्ठे किए हुए पैसे, किसी ने 5 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 4 दिया। बेटे की मेरी जब बात यदि होती थी, जब इसको तंग करते थे पैसे देने वास्ते भी, अपने डैडी को बोल पैसे दे, मेरे बेटे को तंग करते थे, फिर मैं पैसे देता इकट्ठे करके मेरे बेटा की बात करता था। अच्छा, क्या बोलता था? तंग करते थे, कुछ बोलता था, बताता था? मेरे को ये बोलता था, डैडी पैसे दे इकट्ठे करके तेरे को मार रहे। मैं क्या अपने लड़के को बोला, मैं पैसा जहाँ से मर्जी इकट्ठा करके दूंगा, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं अपने दूंगा। यही मांग रहा है कि हमारे पैसे वापस कर दे, हमारा लड़का घर में आ गया, हमने क्या करना, जो कुछ हो गया ठीक। इसके अलावा जसपाल सिंह ने भी ऐसी ही बात बताई कि एजेंट ने उन्हें कैसे फंसाया था। जरा सुन लीजिए। मैं इधर से यूके गया था पहले। कितने समय पहले? मैं 2.5 साल पहले गया था, तो उधर से फिर मैं यूरोप गया, यूरोप से फिर मैं डोंकी रास्ते
एजेंट से तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूँगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। कितने पैसे ले? मेरा इधर से लेके अमेरिका तक 40+ से लग गया है। कैसा सफ़र रहा था ये आपके बाहर जाने का? सफ़र तो इतना कोई अच्छा सफ़र नहीं था, जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को, बहुत मुश्किल दिक्कत परेशानी बहुत आई। सबसे पहले कहाँ गए थे आप? मैं इंग्लैंड ही गया था पहले। इंग्लैंड कितना टाइम इंग्लैंड रहे? मैं 2 साल रहा हूँ इंग्लैंड। उसके बाद मैं यूरोप चला गया था, स्पेन चला गया था। तो जो एजेंट था, कैसे मुलाकात हुई, क्या कहा था उसने भी, कैसे वहाँ पे जाना है? मैंने ऐसे फेसबुक से नंबर निकाला था एजेंट का, तो फिर ऐसे बात हुई मेरी। यहाँ से गए क्यों थे पंजाब छोड़कर? वही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। तो अमेरिका में कब पहुँचे थे? अमेरिका में मैं 24 जनवरी को पहुंचा था, 2025 में। तो कितने दिन वहाँ पे रहे? मैं उधर 11 दिन रहा हूँ। तो कैसे पकड़े गए? जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उधर बॉर्डर पेट्रोलियम उधर खड़ी होती है, उसी टाइम हमारे को पकड़ लेते। ऐसी ही आप बीती है एक और अप्रवासी की, जरा उनको भी सुनिए। गया तो मुझे झूठ बोल कर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हूँ जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। घर वापसी हुई, लेकिन डोंकी लगाई, कैसे वहाँ पहुँचे, किन किन तरीक़ों से वहाँ पहुँचे हैं? कई रास्ते विच टैक्सी भी है, कई रास्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किश्ती पे होती है, फिर लगा कर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते कितने हैं। महीनों में पहुँचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। तो कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में, और वापसी कितने दिन में? 5 बार मुझे जेल हुई है, तो 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर ते जो अमेरिका वाले चौंकी जी 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। सरकार से ही बेनती करते हैं हमारा पैसा वापस कराया जाए कि हमसे झूठ बोलकर हमको डोंकी लगाया गया। सबकी लगभग एक जैसी कहानी। एजेंट ने धोखा देकर डंकी में फंसाया था। ये लोग जैसे तैसे अमेरिका पहुंच गए थे। सोचा था कि अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज कुछ ही दिनों में अमेरिकी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। अमेरिका में बसने का सपना तो टूटा ही, और परिवार की जमा पूंजी भी चली गई। अमेरिका में बसने का सपना देश के हजारों परिवारों को तबाह कर रहा है। इसके आगे का फैसला आपको खुद करना है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। ठीक है।